Hey guys, welcome to the 20th episode of S2F. And we are having a second guest. You know him very well. I know him very well. But still, we don't know him very well. He is a 23-year-old marketing professional working as a post creative strategist at the global brand. He is also my co founder at Marketars. He's also my co host of this podcast and someone I consider a budding entrepreneur with the right mindset and knowledge. He's passionate about books, podcasts, poetry, and hip hop. Introducing Vaibhav Joshi. Hi guys. How are you, Vaibhav? I'm good. How are you, man? I'm fine. कैसा लग रहा है आज उस पोस्ट पे बैठ के जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर देना पड़ेगा? Like listening to podcasts from a long time, to be a guest on a podcast or अपना ही podcast, so that is feeling like wow. A feeling special. So वैभव कुछ words में अपने आप को introduce करना है for me and for the audience. So I'm Vaibhav Joshi and I feel I'm a learner and I am a curious guy, and I think those two things are helping me navigate the world and provide value to people around me, to what the things I am doing, and I think that what best describes me. So yeah. Yeah, you are really a curious guy. So let's dive into your journey. How was your school life, वैभव? मतलब जब आप छोटे थे तो क्या you were a good student? कैसा डिस्क्राइब करोगे अपने आप को? So I was always an average student, not an excellent student, not like bad at it, but over the time, like how the things were in my life, at one point of time I just started to like change my trajectory and I became a good student, and tab se I think I came into the good ones rather than the average ones. So Okay. So were you like मतलब स्टार्टिंग से ही एम्बीवर्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट और इंट्रोवर्ट पूरा ही कि मतलब नॉट पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग ऐसा कुछ? I am very, so this is what I like feel. I'm very good at one to one with people. I'm not good at a group. मतलब एक ग्रुप में खड़े हो, I will be the silent guy. बट अगर तुम मेरे साथ पर्सनल में बात करो तो मैं किसी के अंदर से लाइक बहुत बातें निकलवा सकता हूँ. People feel comfortable around me, तो वो चीज़ होती है. बट in a group setting, I don't think I am like controlling the whole room and I am the most energetic guy in the room. I will be the one who is at the sidelines. But let's talk me in one-on-one, and like that's अच्छा. that's my comfort. ठीक है. तो स्कूल में यूजुअली सबके साथ ऐसा होता है. मेरे साथ भी एक ऐसा पार्ट था एक टाइम पे. तो जब आप स्कूल में थे और मान लो आज से कितने साल पहले आप स्कूल में थे? 5 साल 6 साल 6-7 साल. हाँ 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था स्कूल मैंने. जीनियस बन गया था मैं. तो 5-6 साल है ना. तो स्कूल में लेट्स टेक इट 10 ईयर्स, 10 साल पहले आपने सोचा था आप जहाँ पे आज खड़े हो ये कभी स्कूल में सोचा था कि कैसे मैं फ्रेम अप करके एक मार्केटिंग में आऊंगा और फिर मैं पॉडकास्ट भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा और चीज़ें भी कर रहा हूँ? तो आई थिंक वही पूरी जर्नी की सबसे फैसिनेटिंग बात है कि वट एवर यू थिंक लाइक इवन इन 5 years लाइक देर इज दिस कोट, और मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि वी अंडर एस्टिमेट आवर सेल्फ in an year and overestimate ourselves in a decade. Like, oh sorry, I said the opposite. We underestimate ourselves in 10 years and we overestimate ourselves in 1 year. Okay. तो things are like आपको पता ही नहीं अब अभी भी मैं 23 से 33 में मैं क्या आऊँगा, क्योंकि that will be a whole another thing जो मैंने देखी भी नहीं है. और सेम मेरे को लगता है the Vaibhav who was 13 उसको नहीं पता होगा कि यार he will be doing like marketing, he will be doing something like this, because तब वो goals or dreams of life अलग थे. It was like more of doing a job and some sort of that. अच्छा, तो mindset थोड़ा उस टाइम वैसे का था. आप navigate करते हो. I think even like previous January से मैं अपने आप को compare करूँ तो we evolved so much. तो I think मतलब हाँ लाइक बेसिकली एक साल में इतना फर्क पड़ गया. तो मतलब मैंने मेरे को लगता है आप ऐसा कहना चाहते हो कि एक साल पहले नहीं सोचा था कि यहाँ पे इवॉल्व्ड हम इतना खड़े होंगे. Exactly. तो 13 साल की उम्र में तो कैसे पता होगा उस चीज़ का. बट हाँ एक सपना होता है सबका. तो कोई सपना था आपका कि मतलब मैं कुछ अगर एक सपना था स्कूल में ऐसा कुछ? It wasn't मतलब ऐसा कुछ था नहीं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके लाइक it was I had that instilled in me कि I would be doing something great. और like वो मैंने previous में भी किया कि
इट्स गुड टू बी अंडर एस्टिमेट बाय पीपल कि लोग हम्म। कहें कि ना ऐसा नहीं होगा, बट आई विल बी द अंडरडॉग, लाइक लोग जिसको देख भी नहीं रहे हैं और एकदम से ऐसे साइड में से एंट्री मार रहा है, तो वो वाली चीज़ देखी थी और वो ये मतलब हमेशा ड्रीम करी थी rather देन समथिंग वेरी स्पेसिफिक. तो वही इंस्टिल्ड है, अभी भी वही है कि इट विल बी समथिंग अराउंड दैट ओनली. ठीक है और ठीक है. प्रोफेशंस तो चेंज होते रहते हैं, मे बी टुडे आई एम डूइंग मार्केटिंग, मे बी कल कुछ और बेटर वर्जन हो, तो उसमें अपने आप को मैं मोल्ड नहीं करता कि आई एम जस्ट दिस. आई एम ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज की, देखते हैं और क्या हो सकता है. ठीक है ठीक है. सो वैभव, यू आर 23, आप यंग हो. आप 23 में लाइक यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर करियर Yeah. बेसिकली. ठीक है, आपने पॉडकास्ट शुरू कर लिया, आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया इस साल से, आपने मार्केटिंग एजेंसी में को फाउंडर बन के वो उसको शुरू कर लिया. Yeah. आप जॉब भी साथ साथ कर रहे हो और उसमें सीख भी रहे हो साथ साथ. Yeah. राइट. सो आई जस्ट वांट टू आस्क, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप साथ साथ कर रहे हो, व्हाट्स योर ड्राइविंग फोर्स ब्रो? क्या क्या अंदर से फ्यूल क्या कर रहा है आपको ये चीजें करने के लिए? जैसे कि लाइक 23 पे आप, यू आर नॉट एन एवरेज गाय, बिकॉज एवरेज लोगों को देखें और आपको देखें तो 23 में वो बहुत 90% अलग ही हैं. तो आप Yeah. उनमें आते ही नहीं हो, आप टॉप 10 में आते हो. तो व्हाट्स योर ड्राइविंग फोर्स मैन? To do something big in life and like to really see what I am capable of, what I can do, what is in my limits. तो doing all these things together, मतलब obviously उसमें sacrifices आते हैं काफ़ी चीज़ों के. तो it's what you choose and I am choosing to do this, to do all this. और मतलब एक्चुअली सबसे ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स ये है कि वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ ना, इसमें मज़ा आ रहा है यार. इट्स फन एंड दैट्स वॉट लाइक मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि जब आपको फन होता है ना तो वो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं रात को 12-12 बजे बैठ के भी काम कर रहा होता हूँ और मेरे को नहीं लगता कि यार ओ शिट यार क्या लाइफ है यार, मैं 12 बजे काम कर रहा हूँ. इट्स फन यार, मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे को रात को बैठ के रील एडिट करने में मज़ा आ रहा है. इट्स ऑल्सो लाइक you can be way ahead of people just by like working more than them, because people are giving up at like अगर देखा जाए तो 9 to 5, अगर कोई 9 to 6 काम कर रहा है तो वो वहाँ पे give up कर रहे हैं. and we are keep going on and let's see what I can do more. So जैसे you love what are you doing, that is also one of your driving force कि मेरे को मजा आ रहा है काम करने पे. Yeah. और यूजुअली मैं कहीं और होता, मैं जॉब, अगर मैं मतलब कोई टेक्निकल 9 to 6 या ऐसी कोई जॉब में होता Yeah. तो वहां पे मुझे मजा नहीं आता, तो मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता. तो मेरी Yeah. ड्राइविंग फोर्स ये है कि मुझे True. बनाना है. सो इट इज समथिंग लाइक बिल्डिंग अ ब्रांड, कि मतलब एक अपने आप को एक ऐसा एस्टैब्लिश करना. तो ऐसा कुछ कोई ड्राइविंग फोर्स आपका कि कुछ लाइक बिल्डिंग अ ब्रांड माई सेल्फ या ऐसा कुछ? इट्स जस्ट मतलब वो है कि शुरू से ही प्रोवाइडिंग वैल्यू, और आई डोंट वांट टू बी अ लाई, जो मैं एक फेस पोर्ट्रे कर रहा हूँ, मैं वो नहीं चाहता कभी भी कि मैं ये बनने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहने की कोशिश कर रहा हूँ. आई वांट टू प्रोवाइड वैल्यू, लाइक दीज आर द 2 टॉप थिंग्स. और उसको करते करते ऐसी चीज़ है कि लेट्स सी, अब मैं उधर नहीं जाना चाहता, लाइक है ना, जॉब वाली साइड नहीं जाना चाह रहा. तो इसमें ब्रांड अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, आई हैव टू वर्क हार्ड एंड हैव टू बी वेरी पेशेंट. एंड दैट्स समथिंग लाइक जो मेरे को लगता है मेरा ट्रेट, एंड इट कम्स नेचुरली टू मी. और मतलब आई सी थिंग्स एट 5 years और 10 years का होराइजन, कि तब जाके देखेंगे. अभी अगर मैं ये चीज़ें को मैनेज कर लूँ ना अच्छे से, करना शुरू करते रहूँ, एक लेवल पे. इट टेक्स मोर टाइम देन यू थिंक. तो उसी फोर्स के साथ नाइस ब्रांड बिल्ड हो रहा है. सो अगर बोला तो जैसे आप भी मेरे को, मतलब मैं आपको भी एक बर्डिंग एंटरप्रेन्योर कहूंगा, क्योंकि हाँ तो आपको भी मैं बर्डिंग एंटरप्रेन्योर कहूंगा. इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में कुछ वैभव जोशी कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज करेगा मार्केटिंग में जो किसी ने सोचा ना होए. आई थिंक इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल आई फील. तो एज अ बर्डिंग एंटरप्रेन्योर आपको लगता है कि डू यू फील बैलेंस इज इम्पोर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप, या इन टू एन एंटरप्रेन्योर बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है या बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता? बैलेंस किस वजह से कह रहे हो मतलब? जैसे बैलेंस इस वजह से कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टाइम टू द फैमिली, स्पेसिफिक टाइम टू द योर वर्क, कि एक इतने टाइम में मेरे को 10 घंटे ही काम करना है तो 10 घंटे ही काम करूंगा. तो आपके शेड्यूल में स्पेसिफिक टाइमिंग्स का बैलेंस, की मतलब फन पार्ट जैसे यूजुअली जो कॉर्पोरेट्स में है
दे हैव सैटरडे संडेज, तो उनका बैलेंस सैटरडे संडे होता है कि यार मैं अब सैटरडे संडे थोड़ा ना अपने ड्रीम्स के लिए काम Yeah. करूंगा, मैं तो घूमूंगा। Yeah. तो इस लेवल का बैलेंस आपके लाइफ में इंस्टिल जो है, मतलब वीकली बैलेंस या डेली बैलेंस, ऐसा आपको तो क्या लगता है? I view it as कि things are happening in seasons. तो there is a season of my life where I will be very focused with my family और मैं उनको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा ओके, हूँ. There will be a time where I will be focused on myself और मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, सीरीज़ देख रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, ठीक है. और एक सीज़न होता है जिसमें मैं बहुत वर्क हार्ड कर रहा हूँ और उसमें फिर चीज़ों को तो बैलेंस इज, अगर हम मतलब उसको मतलब डे टू डे में देखते हैं, अगर हम बैलेंस को लाइक ओवर अ ईयर देखें तो ठीक है, यू कैन बी, कभी कभी आपको फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम देना, कभी कभी नहीं देना, कभी कभी आपको इंजॉय करना है, कभी कभी आपको हार्ड वर्क करना है. तो या बैलेंस इज नेसेसरी, बट बैलेंस इज यू डिफाइन बैलेंस. एंड कभी आपके लिए बैलेंस कुछ और होगा, कभी आपके लिए बैलेंस कुछ और होगा, बट पॉइंट इज लाइक यू शुड बी वेरी, अगर एंटरप्रेन्योर अब जैसे मैं ये बनना चाह रहा हूँ तो I know there will be, it comes at expense of a few things. It will come at a expense of few things और वो हो रही हैं, वो अभी भी हो रही हैं. It takes energy from you. You feel at the end of the day कि यार ये नहीं हो पाएगा. और जैसे अभी भी हम काफ़ी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार इसको कैसे नेविगेट करें आगे इसको. बट वही चीज़ है, वो आपको फन इतना लगता है कि आप उसको हर दिन वो स्ट्रेस और वो प्रेशर लेने के लिए तैयार हो और फिर आप उसको बैलेंस कर लेते हो किसी वजह से. बिकॉज मतलब सबसे मेरे को ना एक ये चीज़, आई टोटली बिलीव इन दिस थिंग, एवरीथिंग इज अ चॉइस. If you want to do hard work, it's a choice. If you want to spend time with your family, it's a choice. If you want to spend time with your friends or someone else, it's all a choice. If you want to, you can. If you don't want to, you won't. तो वो आपका ही एक्चुअली में एक चॉइस है. बिल्कुल. तो बैलेंस भी इट्स अ चॉइस यार. अगर आपको लिटरली बैलेंस करना होगा हाँ. ना, तो आप पूरा दिन काम करके और फिर अपने फ्रेंड के साथ चले जाओगे. आप पूरा दिन, अगर आपकी फ्रेंड को आपकी जरूरत है तो आप रात को अपनी नींद सेक्रीफाइस करके काम कर लो. हाँ. इट्स अ चॉइस. हाँ, सो बेसिकली मेरे को लगता है जो ये एग्जांपल दिया, तो हम जैसे अभी वर्क लाइफ बैलेंस कह सकते हैं इसको, तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस इतना नहीं है. बैलेंस इज लाइक मैंने सुबह ही काम करना है और मैंने शाम को ही ये चीज करनी है. बट नहीं, हमें जब जरूरत है तो हम उसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि भाई रात को 10 बजे सोने का टाइम है मेरा, बट आई एम बिल्डिंग समथिंग, तो मुझे ये काम करना चाहे रात के 2 बज जाए, क्योंकि दिन में मुझे कहीं और जरूरत थी या समथिंग लाइक, या कुछ कहीं फैमिली को लेकर जाना, या कोई दोस्त को कोई जरूरत है, कुछ इमरजेंसी पड़ गया, तो मैं रात को मैं वो काम करूंगा. तो मैं उस सेंस में पूछ रहा हूँ. तो मतलब बैलेंस हम खुद ही डिफाइन करते हैं. एग्जैक्टली. है ना. लेकिन ये वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज है, ये ऐसा जो टिपिकल वर्क लाइफ बैलेंस जो हम देखते हैं आज के टाइम में सुनते हैं, वो मेरे को लगता है आप पे अप्लाई नहीं होगा, या हो सकता है वो भी अप्लाई. वही है ना, बट वो किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस है कि यार मैं तो, अगर मेरे को इतना देर काम कर दिया तो मैं इसके ऊपर इसके बाद नहीं बैठूंगा, मैं वीकेंड को काम नहीं करूंगा, ये मेरा वर्क पार्ट है, ये मेरा लाइफ पार्ट है, एंड दैट्स टोटली ओके. बट वही आप ही डिफाइन कर रहे हो ना. बिल्कुल. कभी कभी आपका मन करेगा, जब आप अपनी जॉब से तंग हो गए और आपको होगा कि यार मेरे को एक्स्ट्रा जॉब ढूंढनी है, मेरे को अपस्किल करना है अपने आप को, तो आप कभी तो वीकेंड लगाओगे. बिल्कुल. तो यू आर द वन हु इज डिफाइनिंग दैट वर्क लाइफ बैलेंस. समझ गया. सो बेसिकली एंटरप्रेन्योर के लिए वर्क लाइफ बैलेंस जैसे तूने बताया वैसा ही होगा. मैं इसको मतलब इस वजह से देखता हूँ, लाइक यू नो पहले स्केल्स होते थे. हाँ. सब्जी वालों के पास. हाँ. तो जब उसको स्केल को ऐसे करना पड़ता है, बैलेंस होता है ना उसमें, तो जब आप इसमें चीज रखते हो और इसके साथ उसको बैलेंस करते हो, तो इट मूव्स फ्रॉम हेयर टू हेयर और उसको टाइम लगता है आने में. तो आई थिंक ईयर में आपको ईयर के फुल में उसको बैलेंस करना है. समझ गया. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन. अगर यू के हाँ, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है. एंड आई एम सरप्राइज्ड. बहुत अच्छा एग्जांपल था ये वाला. ये एग्जांपल मेरे को सच में अच्छा लगा, मैं अपनी कॉपी में लिख लूंगा. ओके, सो यू रन विद अ मोटो, इफ आई डोंट क्विट आई कैन नॉट लूज. हैव यू एवर क्विट समथिंग बिफोर, कि जो ये लाइन आपकी लाइफ में वो चीज़ को सोच के आपने ये लाइन अपने पे वो कर लिया है, जैसे कहते हैं ना, मतलब अपने लाइफ, मतलब अपना लाइफ का पॉइंट बना लिया है भाई, मोटो बना लिया लाइफ का कि ये मेरा मोटो है, क्योंकि पहले कुछ क्विट किया हुआ था तो उसका आपको रिग्रेट है कुछ, या कुछ हैव यू क्विट समथिंग बिफोर, तो दो आपको लगता है इट्स मोर रिलेटेड टू स्टार्टिंग, मतलब रादर देन क्विटिंग. मतलब ओके, एक मेरी आदत है, और मतलब मैं देखता हूँ हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग इन लाइफ. तो मेरे से खाना नहीं छोड़ा जाता. मेरे से कुछ चीज़, अगर मैं मूवी शुरू कर लूँ, मैं उसको पूरी देखूंगा जब वो गंदी से गंदी हो. ओके. तो ये कुछ चीज़ें हैं
is how I define myself. Or if I start something, I have to like अब कर लिया शुरू ना, तो खत्म करना बट है. ये जो कोट जिसके साथ इतना मोटो ऑफ लाइफ बना लिया उसको, इट्स बिकॉज मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा उस चीज़ को, क्योंकि मेरे को अच्छा. पता है एक बारी मैंने कर लिया ना उसको कि हाँ अब मैं करूँगा, फिर मैं नहीं हटता पीछे, क्योंकि अब वो पेशेंस इतनी बना ली है कि देखते हैं यार कहाँ तक जाते हैं, इसमें और बेटर कैसे हो सकते हैं. बिकॉज क्विट आप तब करते हो जब आपके पास, क्विट का क्या मतलब होता है यार, आपके पास आप हार गए उस चीज़ से, हार मान ली, बस बट नहीं होगा. पॉइंट इज लाइक मैं भी हार मान लूंगा अगर हम्म. आई हैव ट्राइड माई एवरीथिंग, मैंने सब दे दिया अपना कि यार अच्छा ये वे से ट्राई करता हूँ, अच्छा यार बिकॉज यार किसी ने वो चीज़ करी है ना, किसी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाई है ना, किसी ने पॉडकास्ट को अच्छा चलाया है ना, तो वो उसने कैसे चला दिया और मेरे में क्या नहीं है. द फाउंडिंग, मतलब ये मैंने ना एक बार ट्वीट किया था, द फिगरिंग आउट ऑफ व्हाई दे हैव डन इट एंड आई कैन नॉट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, और उसी के ऊपर लाइफ चल रही है. ये चीज बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है, और कि अगर कोई दूसरा कर सकता है Yeah. तो हम क्यों नहीं कर सकते. लाइक Exactly. वी ऑल हैव 24 आवर्स इन अ डे, वी ऑल आर सेम, तो True. क्यों नहीं हम कर सकते. बिल्कुल सही बात है. तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, स्कूल में, कॉलेज में, कोई जॉब में, मे बी वर्किंग में, या अभी अभी तो जैसे जब से मैं वर्क कर रहे हैं, हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा, बट कुछ पास्ट 23 ईयर्स में कि देयर वाज समथिंग जो दिल में बैठी हुई ये बात, यार आई क्विट दैट टाइम, या समथिंग, कुछ कुछ एक दिल में एक बात बैठी होती है ऐसे. तो डू यू हैव एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ दैट एक्सपीरियंस, कुछ एज इन या रिग्रेट हो गया कि नहीं किया, कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसका रिग्रेट रह गया. रिग्रेट एज इन हुआ है कि बिना मेहनत दिए, बिना उसको बेस्ट तरीके से करे, उसको उस चीज़ को छोड़ दिया हो, तो वो चीज़ होती है. और मतलब हैबिट्स को आई थिंक ज़्यादा क्विट किया है. अच्छा. लाइक इट्स मोर ऑफ कि ट्रू ट्रू. आई डोंट वांट टू डू दिस नाउ, मतलब इसको मैं अपनी आइडेंटिटी से डिटैच करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें क्विट करी हैं. एंड अ लिटिल बिट ऑफ जिसको जो अभी भी स्ट्रगल चल रहा है और जो मतलब वल्नरेबिलिटी है, इट्स लाइक आई फील मैं बहुत जल्दी चीज़ को जज कर और उसको नेविगेट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि आई थिंक दिस इज़ नॉट इट, ये गलत है, तो वो चीज़ के साथ अभी स्ट्रगल चल रहा है. तो या ठीक है. सो अब आप मतलब अब फील्ड में हम उतर चुके हैं और हमको अब खेलना है, तो हम अब पिच पे ही रहेंगे, बॉल आएगी और हम लोग उसको खेले जाएंगे एज अ बैट्समैन. सो हु इज योर रोल मॉडल? लाइक वी ऑल स्टार्ट समथिंग बाय फॉलोइंग समवन, या बाय नोइंग समवन, ये कि बाय मतलब किसी की तरह हम बनना चाहते हैं, आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. तो कोई एक रोल मॉडल आपका अभी जो आपको मतलब एक मोटिवेट कर रहा है या उसकी तरह आप बनना चाहते हो, तो ऐसा कोई? There are just two people, Gary Vaynerchuk and Alex Hormozi. और मैं I believe in this कि it's Gary's quote, like you listen to who you become. You become who you listen to. सारे कोड ऊपर नीचे हो रहे हैं. ऊपर नीचे कैसे करता हूँ ना? You become who you listen to. तो उसी वे से मतलब उन्हीं लोगों को मैं सुनता हूँ, उन्हीं लोगों को मैं अपने सोशल मीडिया मिक्स में रखता हूँ जिनकी जो जैसे मैं बनना चाहता हूँ. तो अब talking about Gary Vaynerchuk, it's about how he is at this point of life, he's so giving. He thinks how I can provide value to someone rather than asking from them कि मेरे लिए कुछ कर दो. और वो हर टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करना, एक पॉजिटिव लेंस लेके आना चीज़ों को, क्रिएटिवली सोचना, क्यूरोसिटी के साथ सोचना चीज़ों को. तो आई थिंक वो सारे ट्रेड जो उसके हैं वो आई फील आई वांट टू एम्बेलिश इन माई सेल्फ. ओके. मैं अपने आप में इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ उसको. और एलेक्स hormozi की भी ऐसी सी बात है कि इज सच एन हार्ड वर्किंग गाय मैन. लाइक उसकी जो डेफिनेशन ऑफ हार्ड वर्क है और टू प्रोवाइड कि अगर मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ किसी को, मैं इसमें इतना सारा टाइम लगा के सिर्फ इतनी सी चीज़ दूंगा क्योंकि ये उसको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेगी. तो वो चीज़ को अपनी लाइफ में करना कि मैं डे टू डे में हम सोच रहे हैं कि यार अच्छा मार्केटिंग करनी है, तो वो आइडियाज़ को इतना रिफाइन कर दूँ और उसमें मैं अपनी हार्ड वर्क डाल दूँ कि अगर वो किसी को देना हो तो वो कहे अरे वाह यार इट वाज रियली वैल्यूएबल फॉर मी. तो वो वाला गिविंग, हार्ड वर्क, और दोनों का हार्ड वर्क यार इट्स लाइक वो टाइम मैनेज इतने अच्छे से होता है, वो चीज़ों को अपने में करना, और वो हर दिन उठ के इट्स लाइक गो बजा, आपका अलार्म बजा ना, यू हैव अ होल डे, अब लेट्स लाइक अटैक ऑन इट. तो वो वाली चीज़ लेके आना कि ट्राई टू
लेजी डेज को. और एक और चीज़ जो मैं दोनों से समझता हूँ, और वो एक चीज़ मेरे को लगता है इट्स अ वल्नरेबिलिटी आई हैव. यू शुड नॉट जज योर सेल्फ डे टू डे. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, लोग नहीं उतना कर रहे हैं आपको. आप अपने आप को जज करते हो, यार शिट मैंने ये नहीं किया, यार आई शुड हैव डन दिस बेटर, आई शुड हैव टॉक टू हिम, आई शुड हैव डन दिस. इट्स ओके, लाइक मतलब ठीक है, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, बट नहीं किया तो इट्स ओके. क्यों अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर डालना. तो वो चीज़ मैं शायद कभी कभी अपने साथ बहुत करता हूँ. और वो अपने आप को जज करना थोड़ा सा मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे को बैलेंस बनाना था, अगर मेरे को फैमिली के साथ टाइम देना था, अगर मेरे को एंजॉय करना था, नहीं हो रहा तो ओके, आगे भी कर सकते हैं. तो वो चीज़. So Alex Hormozy and Gary Vaynerchuk. Vaynerchuk. Okay. So it's quite fascinating क्योंकि जिस प्रिंसिपल्स पे मैं देखो डेली देखता हूँ चलते हुए, वो इनसे बहुत मैच करते हैं. और इट्स ट्रू कि मतलब ये एक मतलब रोल मॉडल जो है आपके, और सही है, मज़ा आया आपको सुन के. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस. Okay. What's the one side of Vaibhav Joshi that no one knows? A side that this room, your car, your terrace knows. या कहीं भी तुम अकेले होते हो, that जगह knows. The one side of Vaibhav Joshi. My thoughts about the world and the people. I Okay. think people don't know that, and in a way this podcast is a medium to share them, but still there's a lot in my head, still there's a lot in my poetry जो सिर्फ मेरी है और वो साइड किसी को नहीं पता. तो वो जो बातें हो रही हैं, लाइक वो आई गेस सिर्फ मेरी ही हैं, और that's a side like that's only for me. और मे बी वन डे वो जो मीडियम से हम चीज़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मे बी दोज विल बी वैल्यूएबल फॉर पीपल, और आई वुड समहाउ मैनेज अ वे टू कम्युनिकेट दैट इन अ वे कि उससे किसी को वैल्यू प्रोवाइड हो पाए. बिकॉज देयर आर सर्टेन टाइम जिसमें थॉट्स चल रहे होते हैं, जैसे कभी कभी मैं जिम में होता हूँ, तो वो कुछ सुनते सुनते कुछ आइडिया आ जाता है, और वो पूरा लाइक वो आइडिया को ही कंस्ट्रक्ट करते हुए, डीकंस्ट्रक्ट करते हुए, अच्छा ये इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है. तो कभी कभी ऐसे रैंडम थॉट्स आ जाते हैं कि अच्छा यार अगर ये मेरा क्लाइंट होता मार्केटिंग के लिए तो मैं क्या करता. फिर अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता. तो वो वाली चीज़ें जो होती हैं, वो वाला पार्ट है, लाइक दैट्स समवन नॉट नो पीपल. मतलब इसको टर्म ऐसा कर सकते हो कि ओवर थिंकिंग है, बट मेरे को वो सही लगता है क्योंकि मेरे को उससे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग मिलती है अबाउट मी कि अच्छा मैं यहाँ तक ये लेवल्स तक सोच सकता हूँ, मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ. क्योंकि ओवर थिंकिंग को ज़्यादा करना ओवर थिंकिंग होते हैं ना, ठीक है, आप ये एक लिमिट है, इससे ऊपर कर दिया तो लिमिट क्रॉस कर देता हूँ मैं बहुत ज़्यादा. बट इट डजंट फील लाइक हैव अ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन मी, बट आई डू ओवरथिंक अ लॉट इन दैट कोई सेंस. ऐसी एक साइड आपकी, मतलब इससे मतलब क्वेश्चन मेरा मतलब ये था कि लाइक अ साइड बिहेवियरली कुछ होए, या कुछ एक वल्नरेबिलिटी जिसको आपको लगता हो कि यार ये एक साइड मेरी ऐसी है जो मैंने बहुत कम लोगों को डिस्क्लोज करी हुई है. लाइक एक आपका ऐसा बिहेवियर, थॉट प्रोसेस तो मुझे पता है कि आप कैसे सोच रहे हो, तो कुछ ऐसा कुछ आप किसी से शेयर करना चाहो तो, इफ यू वांट टू. So I lost my dad when I was like very young, और तब से it started to become like I have to be the man of the house now, और I was like 13-14. तो तब ऐसा था कि हाँ यार I have to like अब देखते हैं मेरे को मैं क्या कर सकता हूँ, या वो चीज़ हो रही है. तो उन चीज़ों से I started to give up my kiddish side of thing, जो immature चीज़ें करनी थी. तो there is a immature side of Vaibhav, and like he's ओके. partying and जो वो चीज़ें करना चाहता है, जो the kid in me. तो वो चीज़ें hidden है because I think उसका टाइम नहीं है, but it's more about like I need those people around me जिनके साथ वो चीज़ें हो सके. तो yeah, that's a side I think. Okay. So my next question is, when a person is building a business, Okay. there is a journey of falling in love. जैसे तूने बात किया कि मेरे को मजा आता है काम करके, Yeah. right? So there is a journey of falling in love with that work, जो फिर आपको पुश करती है आपके लिमिट्स को पार करने के लिए कि भाई टास्क है तो करना है जी, क्योंकि मैं बिजनेस बना रहा हूँ. तो वो टाइम आपने कब फील किया कि मतलब जैसे योर लव फॉर मार्केटिंग, तो ये कब आपने फील किया कि यार
मतलब कि मतलब कुछ एक टाइम होता है कि जिसमें यू फील कि लाइक आई लव डूइंग दिस थिंग यार एंड आई कैन डू इट होल 24 आवर्स भी अगर मुझे करना पड़े तो, और मैं अपनी लिमिट्स पुश मतलब, और उस चीज़ ने एक एग्जांपल ऐसा भी देना कि उस चीज़ ने आपको आपकी लिमिट्स भी पुश कराई हुई है आपसे कि यार मेरे को मजा आ रहा है करके तो मुझे करना ही है, चाहे 4 घंटे लगे चाहे 6 घंटे लगे, ऐसा कुछ, ऐसा एक टाइम और एक So you are एग्जांपल। asking me about how I fall in love with marketing? या Okay. So when I got to know more about marketing और कि कैसे इससे ब्रांड्स ने आज तक वो कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करी इट है. वाज इन सॉरी डिस्टर्बिंग यू, इट वाज इन कॉलेज और कब? आई थिंक इट्स आफ्टर कॉलेज. मतलब कॉलेज में आई गॉट टू नो अबाउट मार्केटिंग, बट वो फॉल इन लव वाला प्रोसेस लाइक धीरे धीरे हुआ कि जब जब मेरे को भी पता लगा कि कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर का कनेक्ट एक ब्रांड से क्यों बन जाता है, तो वो चीज़ मेरे को लगा कि यार इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. और सोशल मीडिया हम हर दिन कंज्यूम करते हैं हाँ और हर दिन हम कितने ब्रांड्स के साथ लाइक इंटरैक्ट कर रहे हैं और वो एक स्माइल आ रही है और वी चूज देम ओवर एनी अदर ब्रांड बिकॉज ऑफ द वे दे मार्केट टू अस. तो वो जो कनेक्ट है ना एक कस्टमर और एक ब्रांड का, वो चीज़ को मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ अलग अलग क्लाइंट्स के लिए कि यार ये चीज़ है, ये ब्यूटीफुल थिंग है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डे टू डे में और आपका कनेक्ट कस्टमर का कनेक्ट हो जाए बिकॉज यू हैव अ प्रोडक्ट एंड दे हैव अ नीड एंड यू मैच इट. बट वो मैच करने के बाद उसको करने, उसको बॉन्ड रखना, बॉन्ड रखना। वो वाली चीज़ जो मार्केटिंग से मैं देखता हूँ, वो मैं चीज़ देखता हूँ टू डू लाइक स्टफ जो एक स्टेप अहेड है, जो दूसरे आपके कंपेटिटर शायद नहीं कर रहे. तो द स्टोरीज लाइक जैसे कि कभी कभी कोई ब्रांड ने किसी एक स्पेशल पर्सन को उसने कुछ अपना शेयर किया कि वो एक जैसे रोने वाली लड़की की थी वीडियो, तो उसने उसको भेज दिया. तो वो चीज़ इतनी वो है ना कि बंदे ने स्टेप लेके कुछ एक्स्ट्रा कर दिया उसके लिए. तो वो चीज़ जो मार्केटिंग के बारे में है ना, एंड टू डू दैट और उसको इम्प्लाई इन रियल लाइफ कैसे कर बिल्कुल रहे हैं. बिल्कुल। तो क्योंकि वही है, जब हमारी जर्नी भी थी कि हमें पहले लगता था इट्स ऑल अबाउट पोस्टिंग इमेजेस, आप वो प्रोडक्ट दिखा रहे हो, बट वो जो स्टोरी लाइन आती है ना उसके अंदर कि अच्छा यार स्टोरी दिखाते हैं किसी को, अगर किसी को शर्ट डालनी है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है. तो वो जब वो चीज़ें कनेक्ट करते हैं हम, तो वो चीज़ें जब हमने करी तो आई थिंक वो ही करने का आगे भी है. हर एक ब्रांड के साथ उसका कोई एक स्टोरी नरेट करना, हर डे टू डे में करना. वी हैव 30 days, 30 different stories. We have so many customers. Every customers can be related to a different story. Every customer segment can be related to a different story. So there's a lot to that. और वही करने के लिए एक्साइटेड होता हूँ मैं और वही करने में बहुत मजा आता है और marketing में. जब तू बात कर रहा है तो तू एक्साइटिंगली ही बात कर रहा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मेरे को लगता है ये चीज एड्रेनलिन रश देती है जो देखो Exactly. है ना, यही चीज देती है एक रश। ऑब्वियसली वो इतना स्मूथ, मतलब ये तो मैं एकदम जूम आउट करके बात कर रहा हूँ, बट जूम इन में वो टफ होती हैं चीज़ें कि अच्छा यार ये किसको कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, अगर ये कनेक्ट होगी भी, ये लग रहा है मेरे को, मेरे दिमाग में वो इतनी अच्छी रोमांटिक सी इमेज बन रखी है कि अच्छा ये होगा, बट वो होगा भी. वो जो टेस्टिंग है उसके अभी हम बहुत प्री हैं और उसमें मेरे को लगता है कि वी हैव टू डू इट और वो मार्केटिंग अभी वो वैसे बनाना है. तो उसमें हम बहुत प्री हैं अभी वी आर नॉट डूइंग दैट एग्जैक्टली. बट वो एक एम है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। एम इज एग्जैक्टली दिस, जो दिमाग में है ना उसको कैसे सामने करना, दैट्स द एम. और Okay. वही वो उसको कितना स्केल पे कर सकते हैं, कितने ज़्यादा कर सकते हैं. मैं अपने आसपास अपनी टीम ऐसे बनाना चाहता हूँ जिसमें लोग जो इतने ही एक्साइटेड हो किसी ब्रांड के लिए काम करने के लिए कि यार लेट्स डू के कैसे कर सकते हैं यार, मजा ही आ जाए कि अरे वाह यार हमने कितना मजे से किया. और मतलब वो बाद में टीम पूरी बात करी यार ये वाला तो और मजेदार एक था. स्क्रीन लगी है बड़ी सी टीम इस कि यार क्या कैप्टन बना दिया क्या यार, बना मजा दिया आ यार. गया। तो वो चीज है और लाइक इट्स नॉट जस्ट फॉर अस, और मतलब कस्टमर का फीडबैक आने के बाद वो आए कि यार बढ़िया तो करा. हाँ फिर मजा भी आया देखी क्योंकि मैं उसमें भी वो आइडियाज में रोमांटिसाइज नहीं होना चाहता, उसकी प्रैक्टिकलिटी में होना चाहता हूँ. वो जो प्रैक्टिकलिटी के बाद मजा है ना कि कोई कस्टमर मिला और जो हमें क्लाइंट ही बता रहा है कि कस्टमर यार तुम्हारी कैंपेन की वजह से उसने हमें ऐसे बोला, तो हमें ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें बहुत सारे. ओके इट फील्स we get that connect और market ours is about that connect. तो सो मेरे को लगता है वैभव जोशी के लाइफ में वो इवेंट विल बी लाइक आई मेड इट. वो इवेंट आई मेड इट, यही चाहिए था, यही करना चाहते थे और उसको ही करते रहो यार. दैट्स लाइक ब्यूटीफुल थिंग, वही आप करते रह रहे हो डे टू डे में, तो you are having fun with it. it's fun like fun when things
or situations go sideways. So how you control your mind, your thoughts, and I'm not talking about कि how you control your situation तो बात second step है. First step is things gone sideways. तो आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हो? लाइक अपने थॉट्स को कैसे वो एक फॉर्म्ड वे में रखते हो कि भाई मतलब कुछ मेरे को भाई सारी चीज़ें हो रही तो शांति से क्या कर सकते हैं, शांति शांति रखो, थोड़ा वो करो. फर्स्ट थॉट इज व्हाट आई कैन डू. मेरे हाथ में क्या है अभी, मेरे कंट्रोल में क्या है जो मैं चीज़ें कर सकता हूँ. और आई लाइक फर्स्ट स्टेप तो वो होता है. और लाइक पूरी जनरलाइज वे में जाना हो अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो तो आई आई रश टू माई रूफटॉप और वहाँ पे मेरे को काम मिलता है एक. और ओके. मेरे को अपने साथ ही थोड़ी सी हुई ना हाँ, हाँ, थिंकिंग overthinking दिमाग में करने के. ओवर थिंकिंग प्लस थिंकिंग, ओवर थिंकिंग स्क्वायर. यूनिक थिंकिंग. इसको कुछ नाम देना चाहिए, अच्छी ओवर काम हो थिंकिंग सकती है. स्क्वायर. हाँ, कुछ कुछ वेब ऑफ थिंकिंग, वेब ऑफ स्क्वायर. तो अच्छा. तो वो चीज़ से लाइक काफ़ी काम मिलता है और क्लैरिटी मिलती है. और ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्टिंक्ट तो होता ही है रश का और इम्पेशेंट का कि क्या हो एकदम से वो चीज़. हाँ, वो बट रश हो ओवर द जाता है. टाइम वो उसको सेटल करने के लिए एक तो कामनेस और फिर क्लैरिटी और उसको थोड़ा सा सोचना क्लैरिफिकेशन के साथ कि अच्छा यार ये ऐसे हुआ है, मेरे कंट्रोल में क्या है और मैं वो क्या क्या कर सकता हूँ. तो मेरे को लगता है बेसिकली एक्सेप्टिंग द सिचुएशन होता है कि अच्छा हो गया, अब मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ. तो मेरे को लगता है ऐसे आई थिंक यू रिसेंटली ना मैंने एक चीज़ को फिगर आउट किया है फॉर माई सेल्फ एंड व्हाट वर्क्स फॉर मी इज हमारी ना हैबिट है, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. वो चीज़ होती सिंपल है, हम उसको एक्स्ट्रा लेयर्स डाल डाल के उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसको डिकंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल. बट वो ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि सबको आई फील पीपल लाइक टू शो द वर्ल्ड दे आर कॉम्प्लेक्स और वो सॉल्व नहीं हो सकते. बट जितना मैं क्या करता हूँ, आई मेक थिंग्स सिंपल फॉर मी कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे था और ये मेरे को चाहिए और ये मेरे को नहीं चाहिए और ये ऐसे ऐसे है. तो वो अपने आप को सिंप्लीफाई कर दिया और अपने आप को क्लैरिटी दी कि यार ये चीज़ है, अब क्या करना है. उससे मेरे को मूव करने ईजी मिलती है. आई नेविगेटेड द टफ पार्ट्स ऑफ माई लाइफ लाइक दैट. और मतलब मेरे को वो फ्रेमवर्क सूट करता है. शायद सबको नहीं करता हो बट या दैट्स लाइक रियली हेल्पफुल. ओके. सो डू यू बिलीव कि a person can achieve anything in his or her life? Do you believe this कि एक बंदा अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है? If they put their efforts behind it, yeah. मतलब ऑब्वियसली मतलब Yeah. कुछ भी अचीव कर सकता है. तो इफ लाइक यस अचीव कर सकता है. Yes, and in a practical way, like मैं कह दूं कि यार मैं तो जुपिटर पे ढूंढ रहा हूँ, एलोन तो मार्स पे ढूंढ रहा है. दैट्स नॉट प्रैक्टिकल. तो आप वो भी नहीं अचीव कर सकते. बट बहुत प्रैक्टिकल वे में इफ़ यू वांट टू डू समथिंग और वो किसी ने किया हुआ है और आपको लगता है यार मेरे को भी करना है, तो दैट्स अचीवेबल. यू कैन डू इट. उसके साथ नेगेटिव थिंग वो आएंगी, जैसे जो चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी है, जो चीज़ें आपको गेन करनी है वो आएंगी. Pros and cons. बट या इट थिंग्स आर अचीवेबल इफ़ यू थिंक दैट वे. और ऑप्टिमिज्म के साथ वो कि थिंग्स कैन बी अचीवेबल, तभी आप उसको कर पाओगे. और जिन लोगों ने किया वो इसीलिए किया. किसी ने अगर लाइट बल्ब इन्वेंट किया, किसी ने कैमरा इन्वेंट किया, किसी ने माइक इन्वेंट किया, उसने ये किया कि यार हो सकता है. तो वो अचीवेबल है. और बट अगर आप इस वजह से सोचोगे कि यार नहीं ऐसा नहीं होता, पता नहीं लोग कर लेते हैं, मेरे लिए नहीं वर्क करता, तो आपने वहाँ पर ही अपने लाइक वेपन्स छोड़ दिए. तो इट्स ओके. आई फील 98% लोग ये सोचते हैं मतलब कि अगर उनको मोटिवेट करना है कि हम एजेंसी बना रहे हैं, उसने भी तो बनाई ना स्टार्टिंग से, तो हम भी बना सकते हैं. 2% लोग पे बात करते हैं, इलॉन जैसे, एडिसन जैसे, कि जिन्होंने एक नई थिंकिंग को ही दिया नाम कि मार्स सोचा नहीं था भाई हम पहुंचेंगे. और वो बंदा रोज शर्ट डाल के घूमता है कि कॉलोनाइज मार्स. तो वो उसने फिर मतलब नए अभी ब्रेक थ्रूज किए हैं जो लोगों ने सोचा नहीं था. तो ही जस्ट टोल्ड कि लॉ ऑफ फिजिक्स में अगर ये चीजें नहीं है तो वो भूल गए होंगे डालना, यार हम डाल देते हैं. तो उसका माइंडसेट वैसा है. दैट्स ऑल्सो ना वही प्रैक्टिकल है कि उसको लगा कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ह्यूमंस को चाहिए होती हैं, तो आई थिंक लेट्स डू दिस. और वो थिंकिंग इतनी बड़ी बिग है यार कि अरे आप पूरे दुनिया को उठा के एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे पटकने की कोशिश कर रहे हो. तो जैसे लाइक देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे ना चीजें प्रैक्टिकल उस मोमेंट पे नहीं होती हैं,
बट दे आर प्रैक्टिकल इन देयर माइंड. लाइक इसके माइंड में है कि रॉकेट वहां भेज के मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा. एडिसन के माइंड में था कि हम हमेशा आग ही लगा रहे हैं तो बल्ब क्यों नहीं चला रहे. हेनरी फोर्ड के माइंड में था कि हम V8 इंजन क्यों नहीं बन सकता. तो वो ये हमने बात करी है तो करके है ना. तो मुझे नॉट ऑलवेज यार प्रैक्टिकल भी नहीं होता सही में. हाँ. और वो एक लिमिट है. अगर आप अपने आप को डाल दोगे कि अच्छा इसको मेरे को पूरी तरह प्रैक्टिकल करना है तो या दैट्स हाँ कि मतलब वो मेरे को लगता है कि ये चीज भी हो सकती है कि इम्प्रैक्टिकल चीजें आपके दिमाग में कि अच्छा यार प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. तो आप क्या पता आपके पास अच्छा आइडिया और आप उसको प्रैक्टिकल ये छोड़ो यार. या दैट्स ट्रू बट या नाइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये देख अच्छा लगेगा. What is meant for you will never miss you. What misses you is not meant for you. Do you really believe this? मेरे कंटेंट से क्वेश्चंस निकल रहे. I'm sorry, I am a cheater. तेरे जितना इनोवेटिव नहीं हो. It's in a way कि you will get things यार. मतलब किसी से कुछ छीना नहीं जा रहा किसी से. अगर आपको लॉन्ग टर्म ऑफ लाइफ जो भी है ना, मैक्रो ऑफ लाइफ जो है, जो जूम्ड आउट वर्जन ऑफ लाइफ है, उसमें आपने इतना भी नहीं कुछ लूज किया और आपने इतना भी नहीं कुछ गेन किया. बट वो डे टू डे में लगता है कि ओ शिट लाइक कुछ बहुत बुरा हो गया तो ओ यार आई थिंक मेरे आई एम नॉट वर्थ इट. लोग सब छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा सब कुछ हो जाता है. बिल्कुल. बट लाइफ मेक सेंस इन लाइक. हाँ एंड आई थिंक लाइफ में वो लास्ट टाइम जब यू वर इंटरव्यूइंग मी तो तूने बात बोली थी ना कि अभी सेंस नहीं बन रहा पर पीछे देखोगे तो सेंस बनेगा. लाइफ इज लिव्ड इन लाइक फॉरवर्ड बट इट शुड मेक सेंस इन रिवर्स. या सो ठीक है. और लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज इफ वी वर लिविंग इन एन alternate reality, okay, in a multiverse, yeah, right, what are the chances you would pursue hip hop? 100%. 100%. मैंने ये सोचा था अगर तू कहेगा हिप हॉप नहीं तो मैं कहा नहीं हिप हॉप नहीं तो कुछ और. चलो आई वाज राइट कि हिप हॉप ही करेगा. अच्छा हिप हॉप यार मतलब मेरे को अभी भी होता है. मैंने कल की बात है, आई वाज एडिटिंग अ वीडियो और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहा था और मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को अपने जो एम्फेसिस वर्ड था उसके साथ बीट को मैच करके वो इतनी एम्फेसिस बना रहा था. तो मतलब वो वही है म्यूजिक प्रोडक्शन वाली चीज़ है. तो इतना फन लग रहा था ना कि यार मतलब ये भी हो सकता है. इफ आई कैन डू इट एंड मतलब जो एक्चुअली लाइक इसमें चीज़ है तो हिप हॉप क्यों नहीं कर सकते. क्योंकि आई डोंट नो वो स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता मेरे को. आई राइट पोएट्रीज, आई डोंट राइट रैप्स. तो वो चीज़ है. और वो चीज़ को याद कैसे करके यार बंदे बोल सकते हैं वो मेरे से तो नहीं होगा. मेरी इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है कि मेरे को वो पूरा रैप याद हो और आई एम स्पिटिंग द बार्स हियर एंड ऑल दैट. आई अंडरस्टैंड बट Eminem and everyone like usually they are recording. हाँ, so तब they तो sheet करके record कर रहे हैं. उसमें वो आ जाता है कि like making it in a structure की. हाँ sure. I try मतलब in my writing, in my poetries I have evolved so much और मतलब वो मैं rhythm बनाने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग चीज़ें डालने की कोशिश करता हूँ. But yeah, it's hip hop is love and if not doing it, I am happy to be a part of that community or receive what other people are doing and supporting them कि अरे यार let's do hip hop. मतलब I feel it's like it's never too late कि कभी ना कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ पे ट्राई करने में क्या जा रहा है. एक ऐसा मोमेंट आए कि why it's necessary to always pursue what you like. You should be a spectator. तो वो वाली चीज obviously usually there is my friend और उसका अपना टेक्नोलॉजी कंपनी है. तो ही इज अ गिटारिस्ट एंड ही लव्स टू प्ले गिटार वगैरह. तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि तो गिटारिस्ट और इसको अपॉर्चुनिटी मिल गया था कॉलेज से ही. ही वर अर्निंग गुड मनी इन द कॉलेज ओनली कि बैंड्स के कॉल आ रहे हैं कि जी और इसका बैंड है तो परफॉर्म करने बुला रहे हैं उसको चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला. तो मैं इसने वहाँ पे छोड़ दिया कि इसको पता लग गया कि यार अगर मैं इसको लॉन्ग स्केल पे नहीं लेके जा पाया तो इसने वहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने पे शिफ्ट ले लिया. तो मैंने कहा अभी जैसे देखो फ्रीलांस तू करता है लाइक ही अभी उसको फ्रीलांस करता है. तो ही टोल्ड मी वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो चीज़ आपको पसंद है ना वो मैं करता हूँ, मुझे पसंद है, पर मैं इसको वो नहीं बनाना चाहता कि मतलब फिर मैं बिजनेस बनाऊँ इस पे, अब मैं ये करूँ इसके साथ इसको, फिर मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ और उसमें मैं बजाना शुरू करूँ. मैं उसको उस सेंस में नहीं देखता. जो चीज़ से प्यार करता हूँ मैं उसको मैं अपने तक रखना चाहता हूँ और उसको मैं इंजॉय करना चाहता हूँ. तो ये भी एक अच्छी चॉइस है. So moving to next question. आज से 10 साल बाद how do you want कि वैभव जोशी का नाम कैसे लिया जाए? क्या नाम के साथ जोड़ा जाए या क्या
कहा जाए इसके बारे में आज से 10 साल बाद क्या लगता है, क्या सोचा है? सेल्फलेस एंड हेल्पफुल गाय, लाइक वही है जैसे मैं बता रहा था, जो ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि यार वट एवर माई ब्रेन और माई माइंड हैज़ एंड वट माई सोल हैज़, उसको वैल्यूएबल कैसे बनाना और उसको किसी की हेल्प करना. क्योंकि यार अगर हम अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं एंड सी व्हाट इफ एक बंदा उससे कहता है और एक बहुत मीनिंगफुल कमेंट लिखता है कि ब्रो इट हेल्प मी टू शिफ्ट द माइंडसेट आई हैड, इट हेल्प मी इन दिस वे, मैंने मार्केटिंग, तुमने ये वाला आइडिया बताया, मैंने अपनी ट्राई किया तो इट हेल्प मी. वो यार इतनी फुलफिलिंग फीलिंग है ना. आई थिंक आई एम नॉट गोइंग आफ्टर एनीथिंग एल्स. और मतलब ये अगर मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए तो ये मेरे लिए ज़्यादा फुलफिलिंग होगा. और वही मैं 10 ईयर्स या जितने भी ईयर्स होंगे उसमें मैं ये बनाना चाहूँगा कि ही वॉज अ सेल्फलेस गाय एंड ही वॉज हेल्पफुल रेदर देन टेकिंग फ्रॉम अस, करके कुछ स्कैम कर रहा है, ऐसे कर रहा है. वो वाली चीज़ के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं होना चाहता मैं. बिल्कुल, कि लोग ऐसे याद रखें कि वैभव जोशी इज अ सेल्फलेस गाय यार. और यूजुअली जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया ना, तो मेरा एक वन ऑफ द रीजन पॉडकास्ट शुरू करने में ये था, और ये तेरे ही उससे मैच कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं, ही हैज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी या समथिंग लाइक दैट, तो हम उससे बात कर रहे हैं और ही इज शेयरिंग हिज चैलेंजेस कि यार मेरे को ना यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया पर मैंने इसका ना ऐसे सोल्यूशन निकाला, एक्स प्रॉब्लम आया मैंने वाई सोल्यूशन करके जेड से सोल्यूशन निकाल लिया. अब कोई बंदा जो उसी फेस पे है, एक बर्डिंग एंटरप्रेन्योर, कि जो देख रहे हैं कि मेरे को भी टेक्नोलॉजी कंपनी बनानी है, और मैंने आया और सेम सिचुएशन मैच कर गया कि यार मेरे को भी ऐसे पैसों का प्रॉब्लम आया था पर मैंने तो छोड़ दिया, तो वहां पर जो वैल्यू मिलेगा ना उस बंदे को, तो मुझे लगता है कि ये एक मेन रीजन है S2F शुरू करने का, कि स्ट्रेंजर्स से कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन हम वाइड स्प्रेड लोगों तक पहुंचा सकते हैं. एंड वो भी एक चीज़ है कि लाइक इन अ वे हमें वो चीज़ उस बंदे से मिले और हमारा कुछ वैल्यूएबल उस कॉन्वर्सेशन में उसको मिले कि हाँ, और वो भी सोचे कि ओ आई वाज थिंकिंग लाइक दिस, यू गाइस लाइक हेल्प मी टू. मतलब वो हर वे में है. हर वे में. और एग्जैक्टली या. तो लेट्स से वैभव हैज ओनली 1 year टू लिव. ओके. तो क्या करेगा वैभव? 1 साल पड़ा है, पता है 1 साल पड़ा है, और यूजुअली आई रेड समवेयर, और मेरे को लगता है कि ये लोग वैसे कहते हैं कि भाई 1 साल रहेगा ये वो वगैरह, बट मुझे लगता है ये ब्लेसिंग है, आपको पता लग गया कि आपके पास कितना टाइम है जीने के लिए, तो देन यू कैन गो ऑन 1000% अटैक मोड की, यार मरने ही वाला हूं मैं, कोई बात नहीं, ये भी कर लो वो भी कर लो. मतलब लोग को माइंड में वो एक बैरियर हट जाता है कि चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करने का या चीज़ों से शर्माने का. तो व्हाट यू लाइक, हाउ विल स्पेंड योर लास्ट ईयर? मतलब मेरे को लगता है कि भाई अभी आई एम लाइक फन आंसर इज आई नो दैट I would do all the death related activities क्योंकि मेरे को पता मैंने तो 1 साल बाद मरना, तो पहले तो कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. और फ्रेमवर्क वाइज एज लाइक मेंटल फ्रेमवर्क जो लोग देते हैं, नहीं, आई विल पुश यू ऑन द फ्रेमवर्क ओनली. एक डिजीज है और मरना ही है, तो ये नहीं कि अब तुम उसकी इंजेक्शन लगा के वो जल्दी भी मर जाएगा फिर. डिजीज है और 1 साल का टाइम दे दिया डॉक्टर ने जी कि बस. हाँ, तो मतलब मैं अपनी लाइफ उस वे से डे टू डे में जी रहा हूँ या जो कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता जो मेरे को रिग्रेट हो, या फिर अब आई कैन से मतलब मैं वो सब चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, और मेरे को ऐसा कुछ नहीं होगा कि यार अच्छा मैं 1 साल बाद, तो आई वुड बी लाइक आई डोंट नो आई वुड बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स. मे बी इट विल बी मोर ऑफ फैमिली, इट विल बी मोर ऑफ एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड इन अ वे थोड़ा सा, रैदर देन वर्किंग. और वर्किंग भी होगा, मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल, बट इन अ होल कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अभी मिस आउट कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अपने आप लाइफ में अभी नहीं कर रहा. तो वो चीज़ है. शिट, 2024 में क्वेश्चन पूछना चाहिए था ये. तब बहुत सारी चीजें निकलती, बहुत सारी चीजें आती, बट अब 25 शुरू क्या हो गया और बदल गया. भाई सब बदल दिया हमने. सिस्टम बदल दिया. वैभव, कोई बचपन का दोस्त अभी तक साथ है? मतलब आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज success on the top, success is empty sometimes, you get little lonely on the top. So कोई बचपन का दोस्त अगर होता है, लाइक ट्रू फ्रेंडशिप्स एक फ्यूल करती है चीजों को, और मजा आता है उनके साथ. तो कोई बचपन का दोस्त अभी होए साथ, मतलब अभी है साथ ऐसा कोई? That's something जो मतलब लाइफ से लैक हो रहा है. Okay, friendship, true friendships and like people who you can enjoy and you can rely on
in the bad times as well. तो वो चीज़ें होती हैं. But yeah, that's something I'm working on, or relationships, and चाहे वो पार्टनर हो चाहे वो फ्रेंड्स हो, दैट इज समथिंग व्हाट आई एम फिगरिंग आउट, और वो 2025 का एक गोल है. तो या एक साल रहता है लिव करने वाला. हो गया मिल गया कुछ. अब उसमें आप कर भी नहीं सकते ना कुछ, आप एक साल में बना भी नहीं सकते ना उसमें से. बात ये भी सही है वैसे. यार क्या ही बनाओ, 6 महीने बाद दोस्त बनाओ और कि भाई मैं तो चला. अच्छा भाई मैं चलता हूँ. मैं तो एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा था ना, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं. ये जो ट्रू फ्रेंडशिप्स वाला चीज़ है ना, समटाइम जैसे हम लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि फील करते हैं हम सारे कि कोई हुए ऐसा जो मतलब पार्टनर में भी होता है और फ्रेंड्स में भी होता है ऐसा. तो आई हैव गुड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कहूँगा, मतलब एवरीवन इज माय फ्रेंड, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ अ पॉजिटिव पर्सन. तो मैं सब में ही वो देखता हूँ, तो मैं सबके दोस्त हूँ. बट हाँ, मेरे को भी लगता है कि कभी कभी कुछ जगहों पे कि मतलब अब मेरे को एक आधा बंदा मिला है चंडीगढ़ जाके थोड़ा सा शिफ्ट होके. तो आई सजेस्ट कि जब हम अपने कहीं एजेंसी का ऑफिस वगैरह बनाएंगे या कहीं पे हम शिफ्ट होंगे, सो आई फील कि वहाँ पे मेरे को लगता है कि यू विल फाइंड योर टाइप ऑफ पीपल अराउंड यू. तो उससे फिर आपका एक कनेक्शन अच्छा बन पाता है. बट आई फील उस सेंस में मतलब अगर लाइक स्टार्टिंग से कहना हो ना, तो आई फील my mom and my sister are your best friends, और they are, उनके सामने मैं जो वर्जन हूँ वो शायद कभी किसी वर्ड के साथ नहीं हो सकता. तो love to them, और they have been supporting since ever, और it's like literally heartfelt. और हर एक चीज़ में, हर छोटी चीज़ में मम्मा का सपोर्ट, हर छोटी चीज़ में दीदी का सपोर्ट. I think that's the biggest thing, और वो that's something I'm very grateful of. और मैं I'll tell you one thing कि जो ऐसी चीज होती है ना, मम्मा का घर मतलब फैमिली वाला सपोर्ट, मैं बहुत साल तक, मतलब अब मैं आई एम लाइक ओपन जैसा हूँ मैं, पर बहुत साल तक ना पता नहीं क्यों यहाँ आई थिंक इंडियन बच्चों में ये होता है, हम पेरेंट्स के साथ खुल ही नहीं पाते हैं यार. हम मतलब दे आर ऑन आवर साइड और वो समझेंगे हमारी बातें. हम अपने बड़े भाई बहन छोटी बहन किसी से खुल ही नहीं पाते हैं. तो मेरे को लगता है वो फ्रेंडशिप बनानी बहुत जरूरी है कि अगर बाहर कोई नहीं है तो घर पे हमारे पास लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम जो हमें जज नहीं करेंगे कि यार हाँ कोई बात नहीं. जैसे हम मेंटल हेल्थ वाले एपिसोड की बात कर रहे थे कि कुछ जो लोग हैं, आप अगर आप उनके साथ भी ट्रूथफुल नहीं हो तो यार फिर तो आप ही गलत कर रहे हो ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई ट्राई टू बी लाइक द वर्जन आई हैव विद देम. बट वो ये कुछ बातें होती है जो ऑब्वियसली अब मम्मी के साथ आप वैसी बातें नहीं कर सकते जो आप एक फ्रेंड के साथ कर सकते हो. मतलब वो एक बैरियर है. बट अदर वे में वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, एंड लाइक आई फील माय मॉम इज माय बेस्ट फ्रेंड. हाँ, आई थिंक सबसे पहले सपोर्ट जरूरी होता है. और वो सपोर्ट अगर मिल रहा है तो उससे ऊपर कुछ नहीं है. लाइक यू आर, मुझे अभी भी मैं बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी भी मैं कभी कभी घर पे कुछ बातें करने में शर्माता हूँ. मतलब उनसे जैसे समटाइम्स यू नो हगिंग योर मॉम, है ना, हगिंग योर फैमिली पूरी. तो ये अब मेरे माइंड में ऐसे जैसे हम एक स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी में हैं तो वो लगता है ठीक है यार मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसी बात नहीं. पर ये कितना जरूरी है. एक मेरे को लगता है आराम ये शिफ्ट से मैंने बहुत लाइक लिटरली किया था. हाँ, और ये शिफ्ट मैंने अभी ही किया है. तो आई अप्रिशिएट यू कि आपने बहुत जल्दी शिफ्ट कर लिया. वाला ये शिफ्ट मेरा कुछ साल पहले ही हुआ है मेरा भी, और जरूरी है. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई नो वैभव यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो थोड़ा पैसों बारे में सोचता है, बट डज मनी बाय हैप्पीनेस? If money can bring happiness to the people you love, money can buy happiness. And that's, मतलब मेरे लिए money as a metric नहीं है. Yeah, money opens your doors for things you cannot do without money. तो वो चीज़ है, वो आपको एक advantage मिलता है over other things. But जो आपकी problems हैं, जैसे नॉट हैविंग फ्रेंड्स, नॉट हैविंग पार्टनर, ये चीज़ें मनी नहीं बाय कर सकती. आपको सक्सेस चाहिए, उसके लिए हार्ड वर्क लगता है, उसके लिए मनी नहीं लगती. तो या मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस दैट वे. हाँ, लाइक कैरेक्टर मैटर्स पैसे के साथ तो उसके वो होता है. बट मनी और दूसरी जगहों पे लाइक मनी सॉर्ट्स योर लाइफ वेरी वेल. स्टिल देयर आर पार्ट्स जहाँ पे यू विल बी वेरी लोनली और यू विल बी वेरी स्ट्रेसफुल कि कुछ हो नहीं रहा भाई क्या करें. तो वो चीज़ फिर पैसा आपको नहीं दे सकता. बिकॉज वो तो वो जो रेस है वो तो नेवर एंडिंग है ही ना, कि अच्छा यार अब आई हैव अचीव्ड दिस. मतलब मेरे लिए गोल था दिमाग में मनी रिलेटेड, और मैंने जब वो कवर कर लिया उसके बाद वो नहीं था कि अरे यार ओके. तो
इससे ना कोई हुए कुछ लिरिक्स मैं ना जैसे वो लाइफ में लिटरली हेल्प करते हैं तो एपी ढिल्लों की एक लाइन है कि हुन बैठी दा है ते चेक करीदा नहीं किन्ना है मतलब बिल सीधा करीदा है टैप अच्छा तो वो वाली चीज आई थिंक दैट्स Yes. इनफ फॉर मनी बाय हैप्पीनेस उसके ऊपर अगर आप लिटरली गोल्स रखते हो आई वांट टू बी बिलियनियर मतलब वो वाला मेरा सीन नहीं है ठीक है परफेक्ट दैट्स द बेस्ट आंसर लाइक इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर यही हो सकता है बिल्कुल सही है Yeah. इन दीज 23 years Hmm. what you feel the most important decision you took and the most worst why decision you took In my 20s? in your life like in these 23 years of your life Okay. Best and worst worst decision. decision Best decision is choosing to do digital marketing. That changed my career and changed my life in ways और वो बहुत intuition और gut feeling वाला था मतलब I made a list और positives and negative of this thing positives and negative of this thing इसके बहुत कम थे but एक gut feeling कह रही थी तो मैं कहा let's do it उसके पॉजिटिव थिंग्स बहुत कम थे डिजिटल मार्केटिंग में ना या मतलब पता नहीं था ना तो उसके बारे में इतना कुछ but अब ये वो ओ माय गॉड तो रेपुटेशन ACCA had all those takes और ठीक है अच्छा ये करना है मेरे को ये करना है मेरे को पैसा भी कमाना है इससे मैं कमा भी लूंगा इससे रेप्यूटेबल जॉब मिलेगी वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ और इसमें कुछ भी नहीं था इसमें कहा लेट्स सी इसमें क्या है और वो बहुत अच्छा वो बेस्ट डिसीजन था वर्स्ट डिसीजन I don't know अभी तक I don't know if I have made yeah maybe choosing my career and work over a few friendships and relationships तो वहाँ पे I think वो worst decision था because वो आप फिर वो कुछ पाने के लिए वो sacrifice made करते हो तो I think I should not have made those sacrifices but yeah like in college something in तब college या in जब life in नया नया काम general शुरू yeah करना किया तब अच्छा तब as a whole तो yeah ऐसा हो कि मैं काम करने लग गया तो थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह वाली साइड पे इतना Exactly. वो नहीं मिल पाया ओके ओके तो वो ओके चीज़ so best and worst decisions cool so what's a lesson you learned the hard way that everyone knows about that everyone should know about यार मेरा क्वेश्चन देख ले कॉपी कर रहा हूँ मैं सब कुछ क्या था मैं what's a lesson you learned the hard way that everyone should know about It's the lesson I learned hard way फट गई ऐसा कुछ हुआ अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है Yeah. नहीं हुआ तो आगे होने वाला है क्योंकि यूजुअली इट इज लाइफ जब तुम ग्रो कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन आएगी तो तब पता लगता है मैं ग्रो कर रहा हूँ To build something it will take time in anything in every aspect of life patience लगेगी I think patience is what I learned the hard way और वो I think is the lesson I want people to know कि it takes time to build a good relationship a good friendship and relationship with your family to build a business to build a career time लगता है चीज़ों में सो जैसे अभी फैमिली के साथ तो तूने बताया अभी जैसे तो प्रोफेशनली क्या कोई ऐसा था हार्ड मतलब प्रोफेशनली लाइक हाउ यू एक्सप्लेन दिस कि प्रोफेशनली मेरे को लगता है करियर वाइज लाइक आपको आई डिड इंटर्नशिप्स आई डिड जॉब जहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ बट वो चीज़ें अगर आज मैं देखूँ तो उस वाली में से अच्छा ये मिला था उस वाली से मैंने ये सीखा था उस वाली में से ये सीखा था तो वो आपका कुछ अ लिटिल बिट नथिंग इन लाइफ गोज वेस्ट यार मतलब आई लिव बाय दिस कुछ भी लाइफ में वेस्ट नहीं होता कुछ आपने अपनी पास्ट लाइफ में सीखा है वो आपको आज प्रेजेंट लाइफ में काम करेगा ही करेगा और वही है पेशेंस से आप आगे बढ़ते रहो एंड जब आप चीज़ें पीछे देख के कनेक्ट करोगे तो विल से अच्छा ओके इट विल ऑल दिस मेक सेंस नाउ रिवर्स मेक सेंस इन रिवर्स राइट So that's all, Vaibhav. Let's start with the rapid fire round. Let's go. Yeah. If Vaibhav Joshi is a brand, yeah, then what will be its brand tagline? ये tagline क्या होगा Vaibhav Joshi brand की? Wow, that's never thought about. चलो शुक्र है एक क्वेश्चन आया ऐसा तूने ये बोला और बाकी तो रेपिटेटिव लग रहे थे. Nice. हाँ. brings you happiness brings you smile in a way
आई तो फील, मेरे को लगता है जब वैभव जोशी एक ब्रांड बन जाएगा या तो मुझे लगता है उसकी टैगलाइन में सेल्फलेस ऐसी कुछ चीज जरूर आएगी कि सेल्फलेसली गिविंग, या मतलब समथिंग लाइक दिस, कि जो आपका सारा मार्केटिंग का वो एक कंपाइल करके बताएगा कि उसमें ऐसा कुछ वर्ड जरूर आएगा. मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली दैट बिकॉज यू आर सो प्रोवाइडिंग वैल्यू, देना हम लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं इसके अंदर. हम कुछ भी बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन तेरा ये होता है कि फायदा क्या मिलेगा उस बंदे को. तो ऐसा कुछ हो सकता है मुझे लगता है सेल्फलेस के रिलेटेड कुछ टैगलाइन. वैल्यू ओवरलोडेड. क्वाइट पॉसिबल. गुड. नेक्स्ट It would be rhyming something मतलब, राइमिंग. हाँ, because बैठदा जोड़दा बे राइमिंग. नेक्स्ट इज रियल वैभव religious? nope. No. Atheist? For Vaibhav, religion is more of in a spiritual sense. Like if you pray to someone, and like I have talked about it, if you pray to someone, you are actually telling your own self to do things. And if there is a God is amongst inside of us. Nice. और वो जो That is सोल है true. आपकी वही like God है. और अगर आप उसके साथ, वो आपको देख भी रहा है जब आप कुछ अच्छा डीड कर रहे हो या बैड डीड कर रहे हो. तो आई थिंक अगर आप अपने साथ अच्छे हो, अपनी थॉट्स अच्छे रख रहे हो, अपने पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हो, आई थिंक यू आर रिलीजियस इन दैट सेंस. तो बट आई एम नॉट द अदर वे अराउंड. Okay, okay. रिलीजियस. I read it somewhere कि जब आप अपने थॉट्स को मॉनिटर कर रहे हो एंड यू आर द मास्टर एंड यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर थॉट्स. तो अगर आपको लगता है ना कि मतलब वो बंदे को ना जेल में बंद कर दिया, पर हमने कहा कि यार अच्छा वो जेल में बंद हो गया, तो दूसरे बंदे ने बताया यार तुमको उसकी सिचुएशन नहीं पता. सिचुएशंस ऐसी थी कि उसको वो काम करना पड़ा. सिचुएशंस ऐसी थी कि यू हैव टू टेक बैड डिसीजन. पर जो ऑथर है, जो मैं बुक पढ़ी मैंने, उसमें वो ऑथर ने बोला कि ये कभी नहीं होता कि सिचुएशंस आपका कैरेक्टर खराब कर दे. आपने एक बार अपनी लाइफ में एक बार वो थॉट ऐसा का कुछ सोचा जरूर होगा, या कोई नेगेटिवली आप किसी चीज को बिहेवियर और थिंकिंग में हो गए, तो दो आपने वो स्टेप ले लिए. नहीं तो ऐसी सिचुएशंस में भी लोग सेल्फलेसली वही रहते हैं पूरा. आई थिंक वो वाली चीज़ ही हमें जैसे मेरा थॉट था कि गॉड इज अमंगस्ट अस, तो उसको अपने आप को गॉड बनाना और अपने आप को ह्यूमन में डिफरेंशिएट करना, आई थिंक ये चीज़ है कि यू विल डू समथिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन. तो वो चीज़ आई थिंक नाइस. और ऐसा ही होना चाहिए यूजुअली जब वी आर ह्यूमंस. सो यूजुअली मैं आई टेल यू कि लाइक आई एम लिटिल बिट रिलीजियस. तो मैं जैसे मैंने भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता मैंने पढ़ी है उसमें, तो उसमें द गॉड टेल्स अस द सेम थिंग कि मैं सबके अंदर ही हूँ. तो मैं सबके अंदर ही हूँ और हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स हमारे अंदर ही हैं. Okay. तो हम लोग जो सोच रहे हैं हम लोग वैसा ही करेंगे. तो आप अपने आप को सोच के खुद ही जज कर रहे हो कि जी हाँ ये सही है मेरे लिए, ये गलत है. तो वो कह रहे हैं और वो थिंकिंग आपकी है, तो एग्जैक्टली सेम है. सही है. आई थिंक इस पे हमने बात कर ली है, बट स्टिल एक अगर होए तो, व्हाट्स द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस यू हैड प्रोफेशनली? कोई स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस यार काम करते हुए, कुछ ऐसा हो गया और मतलब कोई प्रोजेक्ट के वाइज हो गया हो, कुछ काम अटक गया हो और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए, लगे हुए हैं पागलों की तरह, सिर दुखने लग गया, गालियां पड़ रही है, ऐसा कुछ रहा? आई फील स्ट्रेस इज एज लाइक, मतलब कोई गेम खेल रहा हो तो आपको गोल करना है और वो आप हार गए उस गेम में, बट आप ट्राई कर रहे थे, आप ये वाला शॉट मार पाओ, ये वाला नहीं. तो आई सी इट एज अ गेम, और फिर आप कोर्ट से आ जाते हो बाहर और आप कहते हो ओके चलो इट वाज अ गेम. तो आई डोंट स्ट्रेस को मैं अपनी लाइफ में नहीं, इतना मेरी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता कोई स्ट्रेस. तो आई थिंक वो मैनेज करना मेरे को आता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम स्ट्रेस, और वो अच्छा स्ट्रेस है क्योंकि वही मेरे को आंसर्स देके देगा. बट जब हाँ ठीक है यार हो रहा है तो ऐसा कोई एग्जांपल, मतलब अच्छा स्ट्रेस का एग्जांपल कोई कि लाइक यार चीज होगी एवरीडे यार, वो तो मतलब हर चीज कुछ ना कुछ फिगर आउट करनी होती है. तो आई थिंक एवरीडे मतलब समटाइम्स क्या होता है कि हाँ कोई भी आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे, प्रोफेशनली लाइफ में यूजुअली ज्यादा होता है कि काम रिलेटेड डेडलाइंस होती हैं और वो काम हो ही नहीं रहा है और आपका मतलब होगी यार आई एम वेरी मैनेज दैट. मेरे को कभी वो मैं बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज करता हूँ कि मेरे को वो वाली चीज़ कभी आए ना. इट्स अ स्ट्रगल समटाइम्स कि व्हाई आई कैन नॉट डू इट, और वो स्ट्रेस आता है. बट पीपल अराउंड मी वर ऑलवेज लाइक सपोर्टिव कि इट टेक्स टाइम, यू कैन डू इट, और तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बस इसको करते रहो. और वो पेशेंस सिखाई गई है मेरे को. तो आई थिंक दैट्स समथिंग. तो कोई मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, बट ये है कि यूजुअल लाइफ ऐसे वैसे चल रहा है हमारा, राइट?
हार्डेस्ट थिंग ऑफ लाइफ इज टू फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. हम्म. तो अभी वाला वैभव उस मतलब 0 to 100% पे कहाँ पे है कि लाइफ फिगर आउट कर ली हुई है, कि हैव यू फिगर्ड दैट आउट? 0 से 100% के बीच में कितना परसेंट दोगे अपने आप को? I will say 0 to 100. 100%. It's like 50 in because उसका explanation ये है कि I know myself a little bit, और जितना भी मेरे को अभी के लिए ज़रूरत है I have figured that out myself कि मेरे को मेरे बारे में इतनी चीज़ें पता है. But 50 एक्स्ट्रा ये है कि things happen in life, changes आते हैं, ये इधर से उधर होता है, तो वो चीज़ों के लिए I think I don't have figured out. Okay. So there is a little bit of emotional maturity that I lack. तो there is a lot of things there मतलब I lack, और वो चीज़ें फिगर आउट करना वही है लाइफ का. और आई थिंक ठीक है, ठीक है. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर. ओके. वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर जर्नी सो फार, अभी तक. एक वर्ड. कि कैसे वो जर्नी थी. एक वर्ड में अपनी जर्नी आज तक की कैसे डिस्क्राइब करोगे, किसी को बताना है? क्यूरियोसिटी इज हाउ आई एम हियर. एवरीथिंग इज जस्ट क्यूरियोसिटी. देखते हैं यार क्या होता है. ओके. एवरीथिंग इज क्यूरियोसिटी और एवरीथिंग आई डू इज आई फील दिस इज माई ग्रेटेस्ट गिफ्ट. और मतलब ये अगर क्वेश्चन होता है ना, तो क्यूरियोसिटी इज द बेस्ट आई थिंक आई हैव इन मी. आई एम वेरी क्यूरियस, और मेरे को कुछ भी कहीं से भी आता है और मैं उसको सर्च करने चले जाता हूँ और उसके डीप होल में चले जाता हूँ. अच्छा ये ऐसे, अच्छा ये अच्छे ऐसे इसके साथ कनेक्टेड था. एक क्वेश्चन जो मेरे को था कि कभी अगर मैं पॉडकास्ट पे आऊँ तो मेरे को पूछा जाए. Okay. Like, it was इतना सारा वैसे मिस कर दिया मैंने कुछ. it's a very fun question. तो अच्छा लिख के दे दे, मैं बोलता. what is one rule that you want to change about the world? तो ये क्वेश्चन है. अच्छा. ओके. तो इसका ना मतलब ये बहुत छोटी सी चीज है, बट इन लाइफ मेरे को बहुत इफेक्ट करती है. मतलब तो when I am driving और मैं जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, whenever I see a kid walking on the side of the road, that's the rule I want to change. because वो कितना मतलब ये इतना केयरिंग वाले मोड में आता है ना मेरा. एक तो होता है चलो एज अ जेंटलमैन आप फीमेल्स को साइड रखते हो, बट जब वो किड्स को मैं साइड में देखता हूँ ना, तो वो मेरे को होता है कि यार ये रूल एक ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली वर्ल्ड में चेंज हो जाना चाहिए. एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं जब भी मैं देखता हूँ ना, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी मेरे को कोई पॉडकास्ट पे बुलाएगा ना, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे भी करके मैं आंसर करूंगा. और आज भी मैंने धक्के से किया है. बट यार फ्यूचर में जो हमारे को बुलाने वाला है भाई, ये क्वेश्चन डालना भाई का पहले सुन लो. तो आई थिंक यूनिवर्सल लॉ बन जाना चाहिए, और होगा भी ऐसा, बट लोगों के दिमाग में इंस्टिल्ड होना चाहिए. बच्चे इधर, लड़कियां इधर, लाइक यू हैव टू बी जेंटलमैन. और अगर आप मदर हो तो बच्चों इधर अंदर होने चाहिए भाई. कोई आके ठोक के चला गया, बहुत बुरा लगता है यार जब ऐसे देखता हूँ. तो मतलब वो हमेशा थॉट. हाँ. और एवरी टाइम यू जो जा रहे हो ना, तो कभी कभी मेरे को क्या होता है, आई इमेजिन माई सेल्फ दैट गेट. मजा तो आ रहा है, ऐसे कैसे करते हाथ कहाँ गया. कुछ भी हो सकता है. एग्जैक्टली. तो वो चीज. सो वैभव, बहुत अच्छा लगा आपको जान के. और मुझे लगता है कि मतलब ये कुछ पार्ट्स है कि जो मैंने, और इवन ऑडियंस में कितने लोग होंगे और फैमिली में कितने लोग होंगे जो देखेंगे और वो कहेंगे कि अच्छा वैभव ऐसा भी सोचता है. तो कुछ कितनी चीजें हमें पता लगी आज. फैमिली में तो वैभव पता है ना सबसे शांत. शांत है ना, ये का ही बोल सकता है, ये तो साइड में बैठा रहता है. तो मतलब आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद दिस कि आपका एक्सपीरियंस सुनकर ना, मतलब होपफुली सब ना एक न्यू वैभव देखा है. मैंने भी देखा है और ऑडियंस ने भी देखा है. सो आई फील यू आर रियली अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, और आई फील सो लकी टू लाइक हमारा कोलैबोरेशन हुआ किसी तरह के. तूने सोचा और मुझे इस लाइक समझा कि यार इसके साथ बात करके देखते हैं, क्या पता हमारा मैच कर जाए कहीं पे. और क्योंकि आई लर्न लाइक एवरी डे समथिंग फ्रॉम यू. और मुझे लगता है कि जैसा तेरा माइंड है, जैसा तेरा माइंड क्यूरियस है, और जैसा तेरा माइंड वैल्यू पे है, और जैसे तो लोगों को फॉलो करता है, लाइक इट्स अ गोल्डन माइंडसेट जो सबका ऐसा होना चाहिए. जो अपने चीज जो आप काम कर रहे हो उसको मजा आ रहा है करके, और आप जिस तरह वर्क कर रहे हो, जिस तरह लोगों को फॉलो कर रहे हो, जैसे देख रहे हो. तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी कि ऐसे बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे को सीखने को कुछ ना कुछ रोज मिलता है, कुछ ना कुछ. और मेरी शॉर्ट कमिंग्स, सबसे बड़ी बात होती है कि शॉर्ट कमिंग्स में जो मेरी हेल्प कर रहा है,
तो दैट इज समथिंग मेरे को लगता है आज के टाइम पे, इवन समटाइम्स मैं हूँ किसी के साथ, तो कोई शॉर्ट कमिंग होगा तो या तो इग्नोर करता है बंदा, या कहता है यार ठीक है मैं क्या ही बताऊंगा, बस थोड़ा सा बता दिया। बट जैसा तेरा प्रोसेस है कि भैया इसमें ऐसा होना चाहिए, भैया इसको आपको ऐसा करना चाहिए, आसाना यूज़ करना शुरू कर दो और उसके आपको ये फ़ायदा होगा, और कैलेंडर में इतना फ़ायदा होता है, एक बार यूज़ करके देखो। तो जो वो पुश है वो इज समथिंग की जो मेरे को मतलब एक मेरा ड्राइविंग फोर्स बनता है कि यार इतना कर रहा है, मुझे मुझे इसकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है। तो सब सब जो भी तेरे साथ काम करेगा आगे इन द फ्यूचर भी, जो हमारी टीम बनेगी, तो सब में जो एक सबका एक बेस्ट वर्जन निकाल कर उसका उस टास्क में बेस्ट, वो आई थिंक तेरे में क्वालिटी है जो कि तुझे बहुत आगे तक लेकर जाएगी। सो थैंक यू सो मच वैभव Thank आने you, के लिए man. S2F। Thank you for the kind words, man. Means a lot. बस thank you, and for the last thing, wait for the 21st episode, and it's gonna be really really special. Stay tuned. Bye bye, take care.